Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। अभिषेक जी, मनीला मैम को को-होस्ट बना दीजिए। मैम वो ऑलरेडी ओके, गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Connectivity is good, madam? Yeah, I hope so. Can you hear me? Yes, yes, you are very much clear. All right. Very Okay. much. Okay. All right. Let me put my headphones. Yeah. You will share your PPT also, madam, from there only? Just a moment. Yeah. Hello. Yes, ma'am. Yeah, let me put my headphones. Yeah, yeah. All right. Can you hear me now? गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, everyone. Within few minutes, we'll start, madam. Hello। Yes. Yeah, just give me.
नहीं, this fan. Fine. Good morning, Garima ma'am. Good morning. Within few minutes, we'll start, madam. Yes, sure. Actually, exact time we have given to audience 11 o'clock. So they All right. are getting 2 more connected. minutes. Yes, madam. Yeah. They are getting connected. Actually, connectivity problem is one issue. Yes. No, So gradually they are getting connected. right, sure. So it is 11 o'clock. I think I should start. Garima ma'am? Sir, ma'am, please. Ma'am, Please continue. Yeah. So, Vikrant Pranam and good morning to all. Respected Dr. Manila Jain Kaushal Madam,
a famous gynecologist and endoscopic surgeon, laparoscopic surgeon, Mrs. Garima Singh Tomar, ma'am, treasurer of Vikrant Group of Institution, Indore, Mrs. Gunjan Singh Rathore, treasurer of Vikrant Group of Institution, Gwalior campus, principals, deans, HODs, faculty members, and dear students. Today, we are very fortunate. We have Dr. Manila Kaushal, Madam, with us. Madam is a gynecologist, renowned and famous gynecologist of MGM Medical College and MY Hospital of Indore. And she is the vice president of Indore Obstetric and Gynecological Society and also director of Mahi Women's Clinic, which is situated at Panama Tower, Kanchanbag Road, Indore. She is an associate professor in the Department of Obstetric and Gynecology, MGM Medical College, Indore, and she is a recipient of many awards. She is a recipient of SS Ratnam Young Gynecologist Award by Asian Oceanic Federation of Obstetric and Gynecology at the 22nd Asian and Oceanic Congress of Obstetric and Gynecology at Taipei, Taiwan in 2010. She is recipient of FIGO 2019 International Fellowship Award, Fellowship at Stellenbosch University, South Africa, Fellowship by American College of Oncology and Chicago in 2015, and Foxy Korean Award Junior category at 55th All India Conference in 2012, Varanasi, Uttar Pradesh. She is a recipient of Indumati Javeri Award for Best Paper Presentation at 47th All India Conference at Agra. Madam is a recipient of many awards and honor. She has publications, many publications. She has published 26 articles in national and international journals. Apart from all this, she is a very renowned gynecologist. Successfully, she is practicing her field, and she is very famous in Indore. I know Madam is very busy since morning till night, 10 o'clock. But in spite of her extremely busy schedule, when I approached Madam, she has accepted and she has given time to us. So I'm heartily welcome and thankful to you, Madam. Before starting the session, I request my treasurer of institution, Mrs. Garima Singh Tomar, ma'am, to Madam, please deliver welcome address for Madam. Over to you, ma'am. Yeah, thank you, Keshkali ma'am. First of all, good morning to everyone. I just want to extend my heartfelt thanks to Dr. Manila Jain Kaushal for accepting our invitation. Thank you so much, ma'am. It's an immense pleasure for all of us to hear from you, ma'am. Because during pandemic, ma'am, people are like they are either resistant to conceive, or if they have conceived, they have like they have worries about foregoing pregnancy. Sweet. So I would just like everyone to kindly participate and just clear all your questions. Ma'am, I just want to say one more thing about you. Yeah. I have a very good friend of mine. You must be knowing Manali. Manali Parekh. Yeah, Manali and Sunit Parekh. They are like whenever I visit her, and we just had a chat like about the second pregnancy. So she is like that I am blessed with a God doctor. So really, ma'am, her case was really difficult, but you made it so easy. So thank you so much, ma'am. And I think we should start with our webinar. Thank you. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Actually, this topic is a very burning topic which we have selected for the welfare of all women who have joined this. So I request you, madam,
to please proceed with your topic. So over to you, Manila ma'am. Yeah. Thank you, Mrs. Sharma. Thank you. And can you hear me first of all? I just Yes, wanted ma'am. to- Very clearly. Very Awesome. clearly. Yeah. And I'm so thankful for your kind introduction and giving me this opportunity, and as well as Garima for saying so kind words about me. We all doctors try to do our best for our patients. It's your love and gratitude that gives us more energy to move forward. So I'm really thankful once again. And I just want to say you thanks for another reason that this platform has given me the opportunity as a gynecologist to share my experience working in this pandemic, because for me, there was no lockdown. So I work day and night all these days. And because we are in a branch, it is not by choice, but by it was in necessity, because I'm working in a profession where deliveries never stop. And those who were booked with me, who trust us, we can never say no to them. So there are senior gynecs who had stopped working because of their own reasons, because they were ill, they were sick, they were aged. But for me, there was no excuse. So I can share all those experiences of mine during all this tough era. And I think I'm now addressing general public, so maybe uh, it would be easy for me to. I mean, maybe you would be not uh, okay listening to all this scientific words or whatever, because for me, I usually address scientific population. We give lectures to doctors, we give lectures to, for me, talking to public would be difficult. So maybe I don't know what language I should use, what presentation I should make. So I tried to make a presentation which is in English, but I think मैं काफी कुछ हिंदी में भी बात करूंगी, so that Yes. many of you can listen to me. And Yeah. my whole slides are in English. Would you agree, Garima, to me that my language should be either Hindi or English or Ma'am, that's fine, ma'am. You can use dual language, English, Hindi, both. That's fine. No problem in that. what do you say, Mrs. Sharma? Yes, ma'am. Mixed language you can use, So madam. because Yeah. for me preparing slides in Hindi was a tough task. Yeah. And I Slide maybe in yesterday English. that Ji, I'm ji. now to prepare all those slides. So I had made, so I'm sharing my screen right away. Yeah. Okay. Can you see my slides now? Yes, yes, Yeah. ma'am. Yes, ma'am. All right. So I should make it full screen. My video is on, is it? You're able to Yes. see me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Okay. And my voice is also clear. Yes, very good. Okay. So the topic given to me is pregnancy in the pandemic of COVID-19. So there are a lot of issues floating around the subject. So having a baby is the most memorable and significant life milestone for any women or any family, I think so. And in this pandemic, this experience is accompanied with a lot of challenges. There were big challenges which were coming across while the women were getting pregnant. So I agree, all of you, that Yes. I agree. I believe that all of you would agree to me कि प्रेगनेंसी जब आती है तो अकेले जो महिला होती है वही कुछ नहीं होती, पूरा परिवार उसमें शामिल होता है। और हम सब ये जानते हैं कि अब तक ऐसा रहा है कि प्रेग्नेंट होते हैं तो हम सब बहुत खुश होते हैं, सबसे न्यूज शेयर करते हैं, कई लोग आते हैं घर पे हमको मिलने आते हैं, हमारे लिए स्वीट्स लाते हैं, गिफ्ट्स लाते हैं। बट ये जब से पैंडेमिक आया है ये सब सिचुएशंस बहुत बदल गई है ना। There were a lot of different challenges which we faced during this time. So what I'm trying to do कि हम धीरे धीरे ये बात करेंगे कि प्रेगनेंसी से क्या challenges आए, लोगों ने उसको किस तरह से लिया, क्या इसको लेकर मिथ्स हैं और क्या फैक्ट्स हैं। और जैसा कि मुझे बताया गया कि मैं जिनको एड्रेस कर रही हूँ हेल्थ वर्कर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, जनरल पॉपुलेशन है, तो वो अपने आप उनको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, उनको
क्या समझना है और उनके लिए क्या जरूरी है। अगर मैं किसी मुद्दे पर नई ढंग से बात कर पाऊँ तो आई बिलीव कि आप मुझसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द टॉक। Okay. सो या सो क्या हो रहा है कि when people are coming to me, either they are pregnant or they are not pregnant. So बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट हुए हैं। इस पैंडेमिक में बहुत खराब चीजें हुई है, पर एक अच्छी चीज जो मैंने इतने दिनों में देखी है कि हम जैसे इनफर्टिलिटी में डील करते हैं, आई एम एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। सो मेरे कई पेशेंट जो आईवीएफ के लिए प्लान थे वो सडनली प्रेग्नेंट हो गए बिकॉज हस्बैंड्स के पास टाइम था, कोई स्ट्रेस नहीं था। So probably many of the new pregnancies arrived, and I believe by the end of this pandemic, the birth rates are certainly going to be high. So ऐसा मेरा अनुमान है और मेरे कई friends का भी अनुमान है कि the number of pregnancies certainly gone up. लेकिन जो लोग प्रेग्नेंट हो गए हैं वो गलती से या इच्छा से या जैसे भी, ऐसे कई लोग हमारे पास आ रहे हैं, they're trying, they're asking us should we continue this pregnancy or not. कुछ लोग तो डिसीजन लेकर ही आ गए कि हम एमटीपी करा लेते हैं, वी डोंट वांट दिस प्रेगनेंसी। देयर वर मेनी रीजंस। वन वाज द फियर फैक्टर कि क्या कोरोना वायरस से हमारी प्रेगनेंसी पे कुछ असर पड़ जाएगा। देन देयर वर इश्यूज लाइक फाइनेंशियल, पीपल हैज लॉस्ट देयर जॉब, क्राइसिस है, हम बच्चा पैदा करें उसकी आगे का फाइनेंशियल बर्डन जो हमारी फैमिली पे आएगा हम उसको उठा पाएंगे कि नहीं। And there were issues regarding not eating healthy because बीच में सब्जियां नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, हम कुछ खा नहीं पाए, हम इतना स्ट्रेस था, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाए, हम घर में रहे। तो ये सारे बहुत सारी चीजें थी जो बीच में आई और इसकी वजह से लोग ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि प्रेग्नेंट होना है, नहीं होना है, और अगर हो गए हैं तो क्या हमें कंटिन्यू करना है। तो कुछ लोग तो गलती से प्रेग्नेंट हुए हैं तो द एमटीपी नंबर्स हैज गॉन अप। जो लोग इनफर्टाइल थे वो प्रेग्नेंट हो गए तो चिंताग्रस्त है, और जो चाह रहे थे और प्रेगनेंसी हो ही गई है उन्हें ये चिंता है कि प्रेगनेंसी सही रहेगी कि नहीं। तो हम इस पोस्ट पैंडेमिक बेबी बूम के साथ कैसे डील करने वाले हैं और कैसे डील कर रहे हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक जो जनरल क्वेश्चन सामने आता है, क्या गर्भवती महिला को कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा है? तो इसका कहीं जवाब हाँ में भी है और कहीं जवाब ना में भी है। कैसे? We'll just discuss effect of COVID-19 on pregnancy. Pregnant women are not more likely to contract the infection than the general population. तो ये बात बहुत क्लियरली समझनी है कि जैसे आपके हस्बैंड को या आपके फैमिली में किसी और को जितना लाइकली है कि उसको कोरोना हो सकता है उतना ही लाइकली आपको भी है, आप कोई विशेष नहीं है ना। हमें सिर्फ इतना समझना है कि प्रेग्नेंट महिला का जो इम्यून सिस्टम होता है इन जनरल थोड़ा लो डाउन हो जाता है। इम्यून सिस्टम आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, हमारी इम्यून पावर जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है व्हाइल यू आर प्रेग्नेंट। एंड इट इज इन जनरल, इट इज बिकॉज कि जो बेबी आया है उसको भी आपके साथ एडजस्ट होना है, इसलिए इम्यूनिटी थोड़ी कम होने की वजह से हमें दूसरे कोई भी इन्फेक्शन ज्यादा होने का खतरा होता है, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस। So but as it is not like कि कोविड आप ही को जल्दी हो जाएगा, it is सबको बराबरी रूप से ही होगा। ऐसा भी देखा जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उन्हें जल्दी डिलीवरी हो रही है, प्री टर्म पर। बट अभी हम कह नहीं सकते कि वो जानबूझ करके हो रही है या आइट्रोजेनिक जिसे हम बोलते हैं। जैसे शुरुआती दौर में मुझे याद है मार्च और अप्रैल में हमारे पास जितने भी बुक पेशेंट थे वो सबकी रिक्वेस्ट थी कि हमें तो जल्दी जल्दी डिलीवर कर दो, डेट तो आएगी जब आएगी और लेबर पेन जब आएंगे हमारा तो सीजर कर दो। एंड देयर वाज अ हाई इंक्रीज इन द सिजेरियन डिलीवरी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इट इज बिकॉज ऑफ द फियर ऑन पार्ट ऑफ डॉक्टर एज वेल एज फियर इन द पार्ट ऑफ फैमिली। सो ये जो प्री टर्म बर्थ हुई है जो रिकॉर्ड हुई है गवर्नमेंट डाटा में, इट इज मोर ऑफ आइट्रोजेनिक नॉट कोविड रिलेटेड। और जैसा कि हम सब मानेंगे कि रिस्क ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन पूरी सोसाइटी में कई गुना बढ़ गया है। तो ये था कि इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन प्रेग्नेंसी। ट्रांसमिशन की बात करें तो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जिसे हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, इसके बारे में जरा दुविधा है। कुछ फॉरेन कंट्रीज में जो रिसर्च हुई है वो कह रहे हैं कि बच्चे में डेफिनेटली ये जाएगा, और कुछ एक रिपोर्ट्स है भी जहां माना गया है कि न्यूबॉर्न बेबी में कोविड इन्फेक्शन पाया गया व्हिच हैज केम थ्रू द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट वी आर नॉट श्योर क्योंकि एनवायरनमेंट में कोरोना इतना ज्यादा है, अगर माँ को हो सकता है तो बच्चे को डिलीवरी के बाद भी हो सकता है।
वेजाइनल सिक्रेशंस में ऐसा कोई वायरस सिक्रेट नहीं होता है कि हम वेजाइनल डिलीवरी नहीं कर सकते, तो नॉर्मल डिलीवरी यानी वेजाइनल बर्थ कोविड महिला में भी पॉसिबल है। सो ये जो रिक्वेस्ट आ रही है हर दिन कि हमारा सीजर कर दो, हमें तो कोरोना हो जाएगा, सो इट इज नॉट राइट। सिमिलरली हमसे बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि हम ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं कि नहीं, तो यस यू कैन ब्रेस्ट फीड। वो बच्चे को अगर आपको लग भी रहा है कि आपको कोरोना हो सकता है तो भी ब्रेस्ट फीडिंग कोरोना पॉजिटिव महिला भी करवा सकती है। बच्चे पे क्या असर आएगा? इंक्रीज रिस्क ऑफ मिसकैरेज नहीं बढ़ता है, क्योंकि ऐसे मैंने जैसे बताया इनफर्टिलिटी के बहुत पेशेंट जो प्रेग्नेंट हो गए उन्हें डर लग रहा है कि अब मिसकैरेज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही ये वायरस टेरेटोजेनिक है, यानी कि ये जन्मजात की विकृतियों को नहीं बढ़ाता है। सो अगर प्रेग्नेंट महिला को कोरोना हो भी जाए, कोविड हो भी जाए, तो बच्चे पे इसका जन्मजात विकृति होने का कोई खतरा नहीं है। सिमिलरली इट इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर एमटीपी, है ना, टर्मिनेशन के लिए जो महिलाएं आ रही है कि बच्चा गिरवा दो, तो ये भी नहीं इंडिकेटेड है। नाउ सो कुल मिला के the effect on mom is none and the effect on the baby is also nil. So हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि मदर भी सेफ है और बच्चा भी सेफ है। तो जितना रिस्क एक आम जनता को है, उतनी ही रिस्क एक प्रेग्नेंट महिला को भी है। बट स्टिल देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ कंसर्न्स बहुत ज्यादा है। कोरोना सुन के टीवी न्यूज चैनल जो आसपास अखबार जो मिलेगा, कोरोना सुन के एक जो स्ट्रेस फैक्टर बढ़ गया है। और जैसे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि मैं गर्भ संस्कार की क्लासेस भी लेती हूँ, और गर्भ संस्कार के दौरान एक्सक्यूज मी जस्ट अ मोमेंट, गर्भ संस्कार के दौरान हम पेशेंट्स को बताते हैं कि जब मदर स्ट्रेस लेती है, उसे जब भी कोई मेंटल परेशानी होती है या वो किसी भी बात से चिंतित है, तो इसका प्रभाव बच्चे के डेवलपिंग ब्रेन पे पड़ता है। और सारी सर्वेज पूरे विश्व में जो सर्वेज हो रही हैं, जस्ट अ मोमेंट जितनी भी सर्वेज हो रही है इसमें ये बताया जा रहा है कि स्ट्रेस फैक्टर की वजह से जो बच्चे पे माँ पे जो प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे पे प्रभाव पड़ रहा है, वो बहुत खराब है। और बच्चा जो आने वाला है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जितने भी बच्चे इस पैंडेमिक के बाद पैदा होंगे, उनके ब्रेन डेवलपमेंट पे बहुत ही घातक प्रभाव पड़ने वाला है। जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनसे हमारी ये गुजारिश है कि स्ट्रेस फैक्टर को छोड़िए, जो होना है हो जाएगा। आप अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा एक नई पीढ़ी जो आने वाली है, जिस पेंडेमिक के बाद भी जो भविष्य बनने वाला है पूरे देश का, उसकी ग्रोथ की उसके बेस्ट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आपको स्ट्रेस नहीं करना है। तो एक प्रेग्नेंट महिला क्या कर सकती है? जब हम एडवाइस देने की बात करती है तो हम पूरी फैमिली को अंडर सर्विलियंस लेते हैं और उनसे बात करते हैं कि आप उनको सपोर्ट करिए। आप जैसे मम्मी है, दूर रहती है, नहीं आ सकती है, तो वो ईमेल्स के द्वारा, मैसेजेस, वीडियो चैट्स के द्वारा उनको मेंटल सपोर्ट दे सकती है ना। और आप अगर घर पे है, आपके पास काम नहीं, आई थिंक somebody is unmuted themselves. Yeah, I request all of you to unmute. Yeah. So जैसा मैं कह रही थी कि हम कोई नई स्किल, नई हॉबी जो कि घर बैठे डेवलप कर ले। हम ये भी चाहेंगे कि आप खुश रहिए, मेंटल पीस रखिए। घर पे जो कुछ भी पॉसिबल है, रीडिंग बुक्स, लिसनिंग टू गुड लिटरेचर ऑन इंटरनेट, taking shower, meditating, exercising, you doing Kegel, squats, ये सब आप कर सकते हैं घर बैठे। और स्ट्रेस नहीं लेना है, जो होगा जैसा होगा हो ठीक ही होगा। और मैं आपको बताऊं कि मैंने पिछले 2-3 महीनों में इतनी डिलीवरीज कराई हैं कि एंड टचवुड अभी तक मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं है कि किसी को कोरोना हुआ है। तो स्टिल हॉस्पिटल्स आर सेफ, और जब आप हॉस्पिटल्स जाते हैं तो भी ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं होता है, और वहां पर भी सारे नॉर्म्स यूज किए जाते हैं ताकि किसी को भी इन्फेक्शन ना हो।
अब जैसा कि मैंने पेशेंट्स के बारे में बताया इन जनरल, जो कि आप एडवाइस दे सकते हैं एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जब भी आपकी चारों जो प्रेग्नेंट महिलाएं आती हैं और जिनको आप देखते हैं, उन्हें आप ये सब एडवाइस दे सकते हैं जो मैंने आपको दी, कि घर में रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अब आपके लिए क्या एडवाइस है, जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है। आई बिलीव कि काफी लोग यहाँ सुन रहे हैं जो कि नर्सेज हैं और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं और जो ऑब्स्टेट्रिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं जो प्रेग्नेंट महिलाओं को देखते हैं। तो इनके लिए क्या, एक तो मैं कहना चाहूंगी कि देयर शुड बी अ क्लियर प्रोटोकॉल ऑफ वेयर एवर यू आर वर्किंग। अब प्रोटोकॉल की क्या करना है, और ये प्रोटोकॉल आप अपना लोकल बना सकते हैं, जैसे कि हमने अपने हॉस्पिटल में बना रखा है। प्रेगनेंसी में कोई पेशेंट आएगी तो क्या करना है, जैसे मैं अपने क्लिनिक में नॉर्म्स फॉलो करती हूँ कि हमें पेशेंट्स को तंग नहीं करना है, देखना है, अपॉइंटमेंट्स देने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। तो एक प्रोटोकॉल तैयार करिए एंड विच शुड बी अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रोटोकॉल। देन नोटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जब भी आप ऐसा कोई डाउटफुल पेशेंट देखते हैं तो आपको अपने लोकल और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट को इसको नोटिफाई करना है। आपको रजिस्ट्री मेंटेन करनी है। वट एवर यूर सीइंग, आप जिनको भी देख रहे हैं, जो भी आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं या आप डिलीवर करा रहे हैं, आपका हॉस्पिटल है, आपका क्लिनिक है, तो आप सारी पेशेंट्स का एक रिकॉर्ड मेंटेन करिए। तो ये सब चीजें बहुत काम आएंगी जब लेटली हम इस पैंडेमिक से उभरेंगे, या हम अभी तो चल ही रहे हैं सहरा में। तो जैसे मैंने कहा, नोट प्रोटोकॉल, मेंटेनिंग प्रोटोकॉल्स, डूइंग नोटिफिकेशन एंड मेंटेनिंग रजिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको प्रिपेयर होना है। हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, कैसे अपने हॉस्पिटल और स्टाफ को प्रिपेयर करें। तो हम जो भी अवेलेबल स्पेस है उसमें कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। अगर ऐसा कोई पेशेंट गलती से आ जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो अचानक ही आएगा, लेबर पेन में आ गया, लंग में इन्फेक्शन है। लास्ट नाइट ऑल्सो आई हैड वन पेशेंट, उसका शी वेंट टू खंडवा फॉर डिलीवरी, और वहां सडनली उसको कोविड हो गया और उसके लंग्स कोलैप्स हो गए। शी वेंट ऑन वेंटिलेटर एंड शी वाज फुल टर्म प्रेगनेंसी। अचानक दे कॉल्ड मी अप कि अब तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, इंदौर भेजना है। अब सडनली, अब मुझे समझ ही नहीं आया कि अचानक अभी आएंगी तो क्या। तो ऐसा सब किसी के साथ होना नहीं चाहिए। वी शुड हैव एन हॉस्पिटल रेडी, आईसीयू रेडी, जहाँ पर हम प्रेगनेंसी एंड कोविड। सो व्हाट वी डिड कि तुरंत उनको हॉस्पिटल का नाम बता दिया कि यहाँ आईसीयू है, शी विल नीड वेंटिलेटरी सपोर्ट। फिर हमको सीजर भी करना है, सो आई विल बी प्लानिंग अ सिजेरियन फॉर हर वेरी सून बिकॉज वी हैव टू स्टेबलाइज हर फर्स्ट। सो ऐसी सिचुएशंस आएंगी और हम सबको इसके लिए तैयार होना होगा। जो भी जैसा भी, जैसे मैं गायनिक हूँ तो मुझे डिलीवरी करानी है, आप नर्सिंग स्टाफ है, आप चीफ है, उस जगह को हेड करती हैं, तो आप वहाँ क्या करेंगे। तो हमें बेड अलॉटमेंट, आईसीयू सेटअप, या जैसे आप अपने यहाँ नहीं कर सकते तो आप कहाँ भेजेंगे। आप ऐसे दरवाजा बंद नहीं कर सकते सामने कि ये नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी। हम जिम्मेदार नागरिक है शहर के। हाँ, डॉक्टर्स को इतने रेस्पेक्ट से देखा जा रहा है, नर्सेस को इतने रेस्पेक्ट से देखा जा रहा है, और अचानक कोई पेशेंट आता है कहता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, हम कहते हैं नहीं नहीं आई एम नॉट वर्किंग, मुझे तो डर है, मुझे तो डायबिटीज है, मैं तो नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होता है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको उनसे जेंटली बात करनी है, उन्हें अप्रोप्रिएट नंबर और पाथवेज दिखाने हैं। ये बहुत जरूरी है। वी कैन नॉट क्लोज द डोर इन फ्रंट ऑफ देम कि नो नो ये हम नहीं कर सकते। तो प्रिपरेशन हम सबको अपने अपने लेवल पे प्रिपरेशंस करनी है कि हम कैसे डील करेंगे। हम अगर स्टाफ है तो हमको पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स, अब तो आप सब वेल वर्स्ड है क्या क्या अवेलेबल है, कैसे क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कैसे उतारना है, इस पे बहुत सोशल मीडिया और ट्रेनिंग हो चुकी है। तो आई विल स्किप ऑन दिस। हर जो आ रहा है उसकी मेडिकल हिस्ट्री पूछिए, और इस तरह से पूछिए कि उसे ऑफेंसिव नहीं लगे। है ना, ऐसा होता है अस्पताल के बाहर ही खड़े हो जाके, आपको बुखार तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। इतना खराब लगता है जैसे कि आप ही कहीं से इन्फेक्शन लेके उसके सर पे दे रहा है। ऐसा नहीं, आपको ये समझाना है कि वी आर टेकिंग इट फॉर योर ओन सेफ्टी। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति का हम ये सब इसलिए पूछते हैं ताकि आपको आपकी खुद की सेफ्टी है ना। उसको ये श्योर करिए कि आपको कोविड नहीं है। आपको कोविड, आपको अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ अंदर घुसने वाले हर व्यक्ति सेफ ही घुसेगा, है ना। तो ये एक ऑफेंसिव लैंग्वेज जो बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसे ना सबका टेम्परेचर ऐसे थर्मल गन से चेक करते हैं, सो ऑफेंसिव।
आपको आपका व्यवहार इस तरह से रखना है कि जो लोग आपसे मिलने आ रहे हैं उन्हें ये लगे कि ये आप उनकी खुद की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए नहीं। ऑल्दो एट द बैक ऑफ माइंड यू नो कि हम अपनी सेफ्टी के लिए ऐसा कर रहे हैं, है ना। जब मेरी क्लिनिक में कोई मास्क उतारता है या नहीं पहनता है तो मैं नहीं कहती हूँ कि प्लीज आप अपना मास्क पहनिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आपको मुझसे भी खतरा है। जब आप ऐसा बोलेंगे तो वो चुपचाप मास्क पहने। और अगर आप ये कहते हो अरे आपने मास्क नहीं पहना, आप यहाँ कोविड फैला रहे हैं, तो उनको बुरा लगता है। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है। और जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशंस में है, जैसे कि बहुत कोमॉर्बिडिटीज है, बहुत मोटी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, इन सबको हमें अलग से ख्याल रखना है। तो इन सबको हम हाई रिस्क जोन में रखेंगे। नाउ जैसे कि हाउ कैन अ प्रेग्नेंट वुमेन डिफरेंशिएट, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और क्या कहते हैं मुझे कई तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो कैसे पता लगे कि कोविड का सिम्टम है या ये प्रेगनेंसी रिलेटेड है। तो जैसे कि अगर आपको बहुत तेज बुखार, खांसी, ब्रेथलेसनेस या लॉस ऑफ स्मेल, टेस्ट या मस्कुलर पेन हो रहा है, तो हमें ऐसे सोचना चाहिए कि हमें कोविड हो सकता है, क्योंकि कोविड तो जिस तरह से फैल रहा है हम में से कोई नहीं बचा है ना। पहले तो हम ट्रैवल हिस्ट्री लेते थे, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री करते थे, हॉटस्पॉट्स देखते थे, हाई अलर्ट एरियाज देखते थे, पर अब ऐसा कुछ नहीं रहा। तो अगर हमें ऐसा लगता है तो हमारा सबसे पहला फर्ज है कि हम अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें, है ना। हम कुछ भी हो, हम डॉक्टर हैं, हम नर्स हैं, हम स्टाफ हैं, हम डीन हैं, हम प्रिंसिपल हैं, आप कुछ भी हो, लेकिन आपका फर्ज है कि आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपने प्रेगनेंसी डॉक्टर को फोन पे इन्फॉर्म करिए, है ना। और अगर आपको सिम्टम्स ऐसे हैं, जैसे कुछ सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं, जैसे हल्की ठंड लगना, थकान होना, नौशिया होना, हेडेक्स होना, बॉडी एक होना, कमर दर्द होना, ये सब प्रेगनेंसी में भी होता है। तो you can talk to your doctor about this. Ask your patient to talk to the maternity team about this कि क्या ये सही है। फिर हम थोड़ा सा डिटेल हिस्ट्री लेंगे, हमें लगेगा ठीक तो हम इसका कोविड टेस्टिंग करेंगे, नहीं ठीक लगेगा तो हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा और लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए या सेल्फ आइसोलेट करिए। जैसे एंटीनेटल केयर की बात करें तो मैंने देखा है कि लोग हर छोटी छोटी चीज के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं कि जाते ही नहीं है। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट हैं जिन्होंने 6 महीने 7 महीने तक किसी को दिखाया ही नहीं, नो डॉक्टर विजिट, ऑनलाइन कंसल्टेशन चल रहा है। अब सोनोग्राफी तो ऑनलाइन नहीं हो सकती है, देयर आर मेनी थिंग्स, जैसे वैक्सीनेशन ऑनलाइन नहीं हो सकता है। सो हमें थोड़ा सा, तो दोनों एंड के पेशेंट हम देख रहे हैं, जो हर चीज के लिए आ जाते हैं हर हफ्ते, और ऐसे भी हैं जो आ ही नहीं रहे। तो हमें अपने एंटीनेटल विजिट्स ऐसे रखने हैं जो एट स्पेस हो और जितना जरूरी हो उतना ही मिले। जैसे मैंने लिखा 12 हफ्ते पे सोनोग्राफी जरूरी होती है, 20 इन दोनों ही विजिट्स पे सोनोग्राफी और टिटनेस का वैक्सीन लगता है। एक बार 28 और एक बार 36 वीक्स पे जाना जरूरी है, ताकि डॉक्टर असेसमेंट कर सके कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, है ना। अगर आपको कुछ भी ऐसे एबनॉर्मल सिम्टम्स है तो नहीं जाना है, तब नहीं जाना है, क्योंकि रिस्क सभी को होता है। आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं उसे ही कोरोना हो गया तो वो आपको कैसे दिखेगा। तो सब पे ध्यान दीजिए। हॉस्पिटल सील हो गया तो आपकी डिलीवरी भी मुश्किल में पड़ जाएगी। हार्ट बीट सुनना जरूरी नहीं होता बच्चे का। अगर आपका बेबी का किक काउंट नॉर्मल है, 12 घंटे में 10 बार हो रहा है, इट इज ओके। और अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास खुद का सेल्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है तो आप हमेशा अपनी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जरूर रेडी रखिए, क्योंकि आधी रात में भी जरूरी होता है। तो आप कुछ भी, ओला है, कैब है, अड़ोस पड़ोस की कार है, या घर में कोई भी ऐसे, तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल जरूरी है आप सबके लिए। जैसे मैंने कहा कि हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है बेबी कम घूम रहा है, ग्रोथ कम है, तो आप इमरजेंसी में जा सकते हैं। और ये टेली मेडिसिन एक बहुत ही अच्छी चीज है। मुझे याद है जब हम पढ़ते थे तो 20 साल पहले टेली मेडिसिन का इंट्रोडक्शन हुआ था, और बड़ी मुझे हंसी आई थी उस कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप को सुनने के बाद कि कौन एक दूसरे से कंसल्टेशन फोन पे लेगा। और ये 20 साल बाद पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ। वी हैड एन वर्कशॉप इन आवर डिपार्टमेंट
जिसमें फॉरेन से लोग आए थे, स्वीडन से लोग आए थे, और उन्होंने हमको ये बढ़ाया था कि फ्यूचर टेलीमेडिसिन का है। और मैं खुद उस समय सोचती थी कि ये क्या बला है। और आज जब मैं सोचती हूँ कि टेलीमेडिसिन इज अ बूम टू मेडिकल साइंस, आज हम 100 लोग एक दूसरे से जुड़े हैं तो इसी वजह से जुड़े हैं। आज हम भी जूम मीटिंग कर रहे हैं, घर बैठे, आप अपने घर बैठे, और उसी तरह से पेशेंट को डॉक्टर मिल गया, हेल्थ फैसिलिटी मिल गई। तो इसका यूज करिए, आप इसको प्रमोट करिए, आप लोगों को अपना टेलीमेडिसिन नंबर, जिसे हमने भी एक पोर्टल खोल रखा है। फॉर मी आई हैड केप्ट इट फ्री ऑफ कॉस्ट, बट yes, you can make it on money, that you're giving it on time, you're giving your time, you can make video calls, you can make on slots जहाँ पर आप सब connect हो सकते हैं एक दूसरे से। So this is something. Now COVID-19 precautions for pregnant women, तो ये तो मैंने हेल्थ केयर के लिए बता दिया। अब थोड़ा अगेन हम पेशेंट्स की बात करें कि उन्हें क्या ध्यान रखना है। तो वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, दिस इज समथिंग यू हियर अगेन एंड अगेन, बट इट हैज definitely got a good reason. हम धो धो के हाथ जरूर परेशान हो गए, हाथ खराब भी हो गए, जो भी मान लीजिए, लेकिन स्टिल इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड कि हर 10 मिनट में, स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को और प्रेग्नेंट महिलाओं को भी, हर घर में भी अपने हाथ लगातार धोने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट की दूरी, 2 मीटर की दूरी, रोज हम सुनते हैं, सरकार रोज अनाउंसमेंट करती है, फोन पे कॉलर ट्यून बजती है। सो दिस हैज टू बी फॉलोड। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाता। और जैसे मैंने बताया कि वैक्सीन आ जाता, ये तो कोविड का वैक्सीन की बात कर रही हूँ, फ्लू वैक्सीन मार्केट में है, और फ्लू वैक्सीन करीबन 1200 रुपए का आता है, जो कि ओरिजिनली पहले 600 रुपीज का आता था। नाउ फॉर दिस ईयर इट इज एक्सपेंसिव, बट प्लीज जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो फ्लू वैक्सीन ले लीजिए एटलीस्ट, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आएगा इन्फ्लुएंजा हुआ कि कोविड हुआ, और एटलीस्ट हम बच जाएंगे। फ्लू वैक्सीन लेना हम सबके लिए जरूरी है, एटलीस्ट जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है। और मैं अपने सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को भी फ्लू वैक्सीन दे रही हूँ। ये वैक्सीन 1 ईयर के लिए होता है, और यू कैन गेट इट रिपीटेड नेक्स्ट ईयर। हमेशा टिश्यू पेपर साथ में रखिए, और यूज करने के बाद उसे डस्टबिन में डालिए। डू नॉट इग्नोर एनी रेस्पिरेटरी सिम्टम। जैसे मैंने अभी कहा, फ्लू भी हो सकता है, नॉर्मल कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, लेकिन उसे इग्नोर नहीं करना है, उसे यूज करना है, सिम्टम को डिस्कस करना है। चाहे तो हम एंटीबायोटिक का एक कोर्स ले लें और लोकल रेमेडीज कर लें, जो है ना। गो वर्चुअल, किसी से भी नहीं मिलना है, जितना भी कोशिश करें, रिश्तेदार, घर वाले, आसपास, घर के लोगों से भी दूर से ही बात करें। वर्किंग वुमेन वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं। स्टे सेफ। Symptoms such as high fever with or without continuous cough could be possibly due to corona infection. So avoid coming in close contact. अभी जब मैं हॉस्पिटल्स में काम कर रही हूँ, मैं अक्सर देखती हूँ कि नर्सिंग स्टाफ जो कि मेरे हॉस्पिटल में कई दिनों से काम कर रहा है, अब वो इतने कैजुअल हो गए, मास्क भी नहीं पहनते। अक्सर देखती हूँ मास्क नीचे जा रहा है, डबल मास्क की थ्योरी खत्म हो गई है, और सोचते हैं कि हमें तो नहीं हो सकता। और हर दिन, नित्य नए दिन एक नया आदमी पॉजिटिव निकल रहा है, जो कि आप भी महसूस कर रहे हैं। तो कैजुअल एटीट्यूड ही आपको ले डूबेगा, चाहे वो आप हो, चाहे वो आपका पेशेंट हो। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इस पैंडेमिक में, मैं एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर फील कर रही हूँ कि हमें और ज्यादा प्रिकॉशियस और कॉशियस होने की जरूरत है, हम सभी को। सो डिसइंफेक्शन एट योर होम, हम सभी को, जिनके घर में प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो डॉक्टर है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, हम सभी को अपने घर को क्लीन नहीं, डिसइंफेक्ट करना है ना। वी ऑल नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लीनिंग वर्सेस डिसइंफेक्शन। सो लगातार हमें बहुत सारे अब तो ऐसे केमिकल्स मिलने लगे, अल्कोहल सॉल्यूशंस है, ब्लीच पाउडर है, बहुत सस्ता आता है ब्लीच पाउडर, यू कैन यूज। और डोर नॉब्स हैं, लाइट स्विचेस हैं, आपके टेलीफोन्स हैं, काउंटर टॉप्स है ना, हैंडल्स हैं, टॉयलेट के हैंडल्स हैं, आपके फोन हैं, रिमोट्स हैं, इन सबको बार बार डिसइंफेक्ट करना है।
और जो भी आपके रूटीन के कपड़े हैं, लॉन्ड्री है, उन्हें डिसइंफेक्ट करना है। ये चीज हम धीरे धीरे भूल रहे हैं। मैं खुद वैसा महसूस कर रही हूँ कि मेरे घर वाले, मेरा जो स्टाफ है, जो शुरू में इतना डरा हुआ था, जो घर में हर चीज लाने से पहले धोते थे, 4-4 बार नहाते थे, ये सब चीजें खत्म होती जा रही हैं। आई अगेन रिपीट, प्लीज डू इट एज योर व्हाट यू वर डूइंग बिफोर, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, अभी तो ये अपने बूम में है ना। अब हम अगेन बात करेंगे कि ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट में कैसे फर्क आया। तो इंट्रापार्टम यानी डिलीवरी के दौरान क्या करना है। तो एज ए नर्सिंग स्टाफ, प्रेग्नेंट जब महिला डिलीवरी, जैसे मेरे को जो सबसे, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करूं कि डिलीवरी के दौरान मुझे सबसे ज्यादा कब डर लगा। सिजेरियन करते समय तो फिर ठीक था, क्योंकि हम पेशेंट को एक ऐसे ग्लास उसमें रख देते थे, मास्क पहना देते थे, ऑक्सीजन लगा देते थे। पर मुझे सबसे ज्यादा डर लगा डिलीवरी, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कराते समय। मैं पेशेंट भी चिल्ला रहा है, मास्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब एरोसॉल्स उड़ रहे हैं। वो सिस्टर जो मुझे असिस्ट करा रही है, वो भी पेशेंट को कंफर्ट करने के लिए उसको हाथ में ले रही है। जो मेरी नर्सिंग स्टाफ है, जो मेरी बाई है, वो सब बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड। जो बेबी को ले रहा है पीडियाट्रिशियन, वो भी अनप्रोटेक्टेड। सो हमें एक ड्रिल करना चाहिए कि कैसे ऐसे मौकों पर भी, मैंने अपने हॉस्पिटल में एक ड्रिल सिखाया सबको कि अगर पेशेंट बहुत पेन में भी है, इमरजेंसी में, हम सब भूल जाते हैं उस समय, हमें सब अपना फर्ज याद आता है, उस समय भी हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। शील्ड्स यूज करिए, पेशेंट को भी शील्ड दीजिए, ये बहुत जरूरी है। हम कोशिश करें कि सिर्फ एक बर्थिंग पार्टनर हो, है ना। हम बहुत रिलेटिव्स को अलाउ नहीं करें, विजिटर्स अलाउ नहीं करें, और जो भी आ रहा है उसे प्रॉपर गाउन, ग्लव्स और आई प्रोटेक्शन की लगातार सलाह दें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जैसे हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए पेशेंट आती है तो ना करते भी 4 अटेंडर तो उसके साथ में होते हैं। तो हम उन्हें ना धक्का ना दें, उन्हें उन्हें जबरदस्ती ना करें, उन्हें हम एजुकेट करें कि अगर आप 4 हैं और ऐसे सबके साथ 4 होंगे तो आपके ही पेशेंट को ज्यादा तकलीफ होगी। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे हमने अपने हॉस्पिटल में कर रखा है कि एंट्रेंस पर जब पेशेंट आते हैं तो प्रॉपर पीपी किट या फेशियल मास्क या मास्क पहने हुए, जो फेस शील्ड पहने हुए, जो फर्स्ट पर्सन है जो पेशेंट को देखता है, वो पहले पेशेंट का हिस्ट्री लेगा, उसको एग्जामिन करेगा, उसका टेस्टिंग होता है इन डिफरेंट फॉर्म्स। अगर हमें टोटल एसिम्प्टोमेटिक लग रहा है तो भी, अगर वो डिलीवरी के लिए आया है तो हम किसी फॉर्म में इसकी कोविड टेस्टिंग करते हैं, जैसे हम एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं, आरटीपीसीआर या एक्सरे करते हैं, या जो भी हमारे लिए पॉसिबल होता है। कैन यू प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट। ओके, सो तो हम उसको पहले अपनी तरफ लेते हैं, फिर हम उसको पहले एनालाइज करते हैं बिफोर एक्सपोजिंग टू एनीवन एल्स। और अगर वो लेबर में ही आ जाता है तो बात अलग है। तो मैं आपसे अब डिस्कस करूंगी डूज एंड डोंट्स फॉर ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोवाइडर इन कोविड-19 पैंडेमिक। सबसे पहले जो रूल नंबर 1 है, हमें कभी नहीं भूलना है कि हमारा क्या फर्ज। कोविड आएगा जाएगा, है ना, हमें अपना ध्यान भी रखना है, लेकिन हम कोई भी मैनेजमेंट डिले नहीं कर सकते। आई सीन हॉस्पिटल्स, मैंने इस एरा में ये भी देखा है कि हम कितने हार्श हो गए हैं। हम लोग हॉस्पिटल के गेट पर ही इतनी इंक्वायरी, इतने फॉर्म्स भरते थे कि हम ये भी भूल जाते हैं कि पेशेंट को लीकिंग हो रहा है, पेशेंट को पेन्स आ रहे हैं, उसको ब्लीडिंग हो रहा है। सो हर स्थिति में हमारा पहला फर्ज है कि हम पेशेंट को प्रॉपर मैनेज करें। So do not delay any management in order to test COVID-19. ठीक है। इलेक्टिव प्रोसीजर्स, जैसे कि आपको इलेक्टिव सिजेरियन करना है, इंडक्शन ऑफ लेबर करना है, रूटीन ग्रोथ स्कैन करने हैं, फीटल मेडिसिन यानी कि टारगेट सोनोग्राफी करना है, एंटी स्कैन करना है, इन सबको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इन सबको हम डिले कर सकते हैं, लेकिन जो जरूरी है उसे करना ही होगा। नाउ इन दिनों ऐसा भी देखने में आया कि सारे सोनोग्राफी सेंटर्स बंद थे, सोनोग्राफीज नहीं हो रही थी, धीरे धीरे बड़ी हिम्मत करके खोले भी गए। तो क्या ये सही था? नहीं सही था। अब ऐसे कई पेशेंट्स का हम टर्मिनेशन कर रहे हैं जिनके फीटल डिफॉर्मिटीज हैं,
तो जो कोरोना पेंडेमिक हुआ, जो समय था कि 1-2 महीने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, गवर्नमेंट पॉलिसीज थी, उसमें जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब हम जो जरूरी चीजें उन्हें ना नहीं कर सकते। सोनोग्राफी होनी है तो होनी है, चाहे वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, आप सोनोग्राफी मशीन को डिकंटामिनेट कर सकते हैं। और सपोजिंगली एक पेशेंट आ ही गया है जो कोविड पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना होगा ये भी मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन मैं अभी ये चीज को हाईलाइट कर रही हूँ कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट पेशेंट हमारे पास है तो हमें उसे कोविड पॉजिटिव मान के ही चलना है, जैसे हम एचआईवी के केस में करते थे कि जब तक टेस्ट नहीं हुआ है, एचआईवी टेस्टिंग नहीं हुआ है, तब तक ऑल पेशेंट्स आर एचआईवी पॉजिटिव एंड वी हैव टू यूज यूनिवर्सल प्रिकॉशन। तो जब अगर पेशेंट लेबर में आ ही गया है तो हम तो उसे कोविड पॉजिटिव मान के ही चलते हैं। हम अपने सारे स्टाफ को हाई अलर्ट कर देते हैं कि इस पेशेंट का स्टेटस हमें नहीं पता है, हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज करने हैं। मेक श्योर उसका हम ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं, अगर वो ऑल्टर्ड नहीं है तो हम उसके अपने हॉस्पिटल में रहने दें, नहीं तो हम उसे टर्शरी केयर सेंटर पे इमीडिएटली ऑन एम्बुलेंस विद ड्यू केयर भेज दें। हमें उसका टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन और रेस्पिरेटरी चेक करना है। अगर हमें लग रहा है कि इसमें कोई खामी है, कोई प्रॉब्लम है, तो तुरंत एक्सरे करें, कोविड टेस्टिंग कराएं और उसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर। रेस्ट ऑफ ऑल पेशेंट्स को हम कोविड मान के अपने ही सेंटर पे मैनेज करेंगे। हमें उनका आवरली ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना है, जो कि नॉर्मली नहीं करते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग इज द बेस्ट वे टू डू, बिकॉज एवरीथिंग इज रिकॉर्डेबल और हमें समझ में आता है। जिन फैसिलिटीज में सीटीजी फैसिलिटी नहीं है वहां पर हम जो भी हमारा कन्वेंशनल मेथड है यूज करिए। But again, I would highlight all patients should be treated as COVID positive. Now, question ये है कि should all women get tested for COVID before getting admitted to hospitals? So this is a big query. अच्छा, क्या है कि पेशेंट्स ही डिमांड कर दी कि हमें ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट करो जहाँ कोई कोविड पेशेंट नहीं हो या कोई, तो उसके लिए हॉस्पिटल्स ने अपने अपने इंडिविजुअल प्रोटोकॉल्स बनाए हैं कि हम टेस्ट करेंगे, है ना। बट गवर्नमेंट ऑर्डर्स नहीं है ऐसे कुछ कि उसके बिना आप पेशेंट ले नहीं सकते। अगर आपको लग रहा है, अगर हाई रिस्क लग रहा है, सैचुरेशन नहीं है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, टेम्परेचर है, डेफिनेटली कराना है। इलेक्टिव प्रोसीजर्स है फॉर योर ओन सेफ्टी एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर patients admitted in that hospital and for the safety of staff working in the hospital. Yes, you can go for a COVID testing before, but it is not mandatory. I should repeat, ये mandatory test नहीं है, तो हम ऑफर कर सकते हैं अगर पेशेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो, और इलेक्टिव केसेस में करना है। वेरियस टेस्ट अवेलेबल है। एक आरटीपीसीआर होता है जिसकी कॉस्ट करीबन 4,000 रुपए होती है। एक एंटीजन टेस्टिंग होता है जो कि 1,500 से 2,000 रुपए में होता है। एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है जो कि 800 रुपए में होता है। सो एक्सरे करा सकते हैं जो कि भी 700-800 रुपीज में जाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड द नीड, आपको डिसाइड करना है कि हमें कोविड टेस्टिंग करवाना है या नहीं। नाउ ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने हमेशा आता है। तो जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं या जो सस्पेक्टेड भी हैं, उन्हें भी हम कंटिन्यू करवा सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग टू देयर इन्फेंट, क्योंकि वायरल ट्रांसमिशन मदर टू बेबी थ्रू ब्रेस्ट मिल्क नहीं है, जैसे कि एचआईवी में होता है ब्रेस्ट फीडिंग से पड़ता है, इसमें नहीं है एंड इट इज प्रूवन ऑन रिसर्च। ये जरूरी इसलिए भी है कि अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन और एंटीबॉडी सपोर्ट नहीं मिला तो बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे। बट एट द सेम टाइम व्हाइल यू नर्स योर बेबी, हमें रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखना है। मदर को पीपी किट पहनना है या फिर प्रॉपर फेशियल सील और हैंडलिंग ऑफ द बेबी इन अ प्रॉपर वे इज मैंडेटरी। Okay, so, and what precautions to take around the baby to maintain immunity? This is also few questions which come around. So, best way, जब आपके घर में बच्चा आ गया है, डिलीवरी हो गई है, तो आप क्या करें जिससे कि बच्चे के चारों ओर एक अच्छी इम्यूनिटी रहे कि उसे इन्फेक्शन नहीं, क्योंकि बच्चा भी अब एक जीव है, ह्यूमन बीइंग है। जैसे आपको कोविड हो सकता है, उसको भी हो सकता है, और बच्चे को हो गया तो अभी तो पता भी नहीं कि क्या करना है, और वो तो इतना छोटा है ना, न्यूबॉर्न बच्चे तो इतने छोटे होते कि कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो हम क्या करें? ये जो एक हमारा इंडियन कल्चर है कि जब बच्चा आता है तो इतने विजिटर्स आते हैं, इतने लोग
आते हैं, आप बुरे दिखेंगे, लेकिन घर वालों को भी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लोग ना आए मिलने, जिसे देखना है वीडियो कॉल पे देख लें, फोटोग्राफ शेयर कर लें। डिलीवरी के बाद भी महिला को हेल्दी डाइट को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, प्रेगनेंसी में तो देनी ही है, मैंने हाईलाइट नहीं किया इस पॉइंट को, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी healthy diet, especially in this pandemic, is very very important. You might not, I've seen a time दवाइयाँ नहीं मिली, हमने अपने मेडिकल स्टोर वाले को बुला बुला के लोगों को दवाई बांटी है। खाना नहीं था इंदौर में, तो हरी सब्जियां नहीं थी, ड्राई फ्रूट्स नहीं थे, फ्रूट्स नहीं थे, सो देयर वाज टाइम कि लोगों ने 2-2 महीने तक ये सब नहीं खाया है। तो जो भी अवेलेबल है बेस्ट है। आप हेल्दी डाइट लीजिए, घर पे योगा करिए, ब्रीदिंग करिए, मेडिटेशन करिए, एंड आपका हाइजीन मेंटेन करिए। ये ना सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान, बट कि आफ्टर डिलीवरी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर डाइट एंड एक्सरसाइज शेड्यूल वेरी वेरी ऑप्टिमाइज। नहीं तो ये आपके लिए भी खराब होगा और जो न्यूबॉर्न है उसके लिए भी खराब होगा। अगर आप हेल्दी हैं तो आप अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकती है। सो बच्चे की और आपके स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत जरूरी है। डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो जैसे मैंने पहले बोला, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो ब्लीच सोल्यूशन हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, इट इज वेरी चीप, फ्रीली अवेलेबल। आप उसको रोज प्रिपेयर करिए, हर घर की हर चीज। साथ में अगर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर है आपके हॉस्पिटल में, तो हम खैर डिसइंफेक्टेंट हम सिखाते ही हैं और यूज करते ही हैं। अपने घरों में भी अब हमें इसे प्रैक्टिस करना है। अब समय आ गया है कि हम अपनी नॉलेज को, जो नर्सिंग में हमने नॉलेज लिया है, जो ट्रेनिंग हमने डिसइंफेक्शन और इन्फेक्शन कंट्रोल की लिया है, आई बिलीव कि हमें अक्सर ही ऐसे इन्फेक्शन कंट्रोल के लेक्चर्स सुनने को मिलते। आज हमें उन सब चीजों को अपने घर में, अपने व्यवहार में यूज करना है। So we all know alcohol and this bleach solution is very good. तो इससे हम अपनी इस नॉलेज को अपने पेशेंट्स को भी बांट सकते हैं कि घर की सारी चीजें, स्पेशली बच्चे के चारों ओर की सारी चीजें, उसका झूला है, उसकी कॉट है, उसके बिस्तर है, ये सबको हम डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से और जो भी मीन्स है उससे हम करें। So I think I am ending up with my talk. So in this pandemic, जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने किया है, जो हम करना है, ये सब चीजें अलग अलग प्रकार से सामने आएंगी। बट हाउ विल दिस एंड, नोबडी नोज कि ये सब कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा। लोगों का मानना है वैक्सीन आएगा, खत्म होगा, लेकिन we don't know actually what will be the future of this COVID and what is the future of this pandemic. But there is a post-COVID baby boom which is going to come up. We're going to see more pregnancies, we are going to see more deliveries, and no expert is quite sure yet कि क्या होने वाला है। But हम क्या कर सकते हैं? We should not panic too much. With my all experience in last 3 months, मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत पैनिक करने की जरूरत है। प्रेग्नेंट महिलाओं को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, don't walk away with this fear that pregnancy and COVID-19 are a dangerous mix. They're not a dangerous mix, right? ये हर उस बीमारी की तरह, जैसे आपको डायबिटीज है, आपको हार्ट डिजीज है, आप और किसी बीमारी से ग्रस्त है, उसी तरह से आप प्रेगनेंसी से ग्रस्त है, ऐसे समझ लीजिए। इट इज नॉट अ डेंजरस मिक्स। एंड मैं भी इसके लिए बहुत प्रोफिशिएंट नहीं हूँ इस टॉक को देने के लिए, बिकॉज over the across the world research is going on. We don't have enough data that what will happen to the pregnancy because of COVID and COVID to the pregnancy. We're still learning. जो मुझे समझ में आया, जो मुझे ज्ञान अपने एक्सपीरियंस से मिला और जो मैं लिटरेचर में सर्च कर पाई, मैंने आपके साथ शेयर किया। I hope you enjoyed my talk, or even you not enjoyed, you don't have choice. So I believe कि अगर अब आपके पास कुछ questions हैं तो मैं आपके साथ happily share करना चाहूंगी and discuss करना चाहूंगी। Yes, ma'am. It was a very very knowledgeable talk, madam. Actually, we can make out that if genius doctor is taking talk, it may be very useful. It is really very very useful and very new knowledge we all have gained.
And I'm 100% sure that everybody will utilize this knowledge in their practice in day-to-day life also. And madam, we had many questions from the audience. Actually, yesterday only I had taken questions, but many of the questions have been answered by you during your talk. Ma'am, Few questions are still pending, ma'am. Okay, ma'am, I'm ready to take. Yeah, Yeah, I would love to answer actually. yes, ma'am. ma'am, I have one question. Yes, Yes. please. मैम ड्यूरिंग लेबर पेन बीपी के कारण थोड़ा रिस्क रहता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी को भी सीजर करना पड़ता है. मेरी एक सिस्टर इन लॉ की ड्यूरिंग द लेबर पेन बीपी सडन हाई हो गया था, तो उसके लिए हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि बीपी हमारा नॉर्मल रहे? Basically, unrelated question है to my talk, but I would definitely like to answer कि blood pressure control में करना किसी भी महिला के हाथ में नहीं होता है ना. Yes. और pre-eclampsia एक word है जो कि हम यूज करते हैं. It is a condition which develops during pregnancy. उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, and unfortunately science is not developed yet to prevent this pathology. अगर बीपी बढ़ना है तो बढ़ेगा. अब जहाँ तक सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी का सवाल है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के बावजूद भी नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, बट जो डॉक्टर आपको देख रहे हैं ये उसका इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन होता है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या जरूरी है पेशेंट के लिए. कभी कभी मदर और बच्चे की जान के लिए वही सही होता है और हमें बिलीव करना पड़ता है. इसलिए डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो डॉक्टर आपको देख रहे हैं आपको उन पे फेथ करना जरूरी है. तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकती कि क्या जरूरी था उसके लिए उस समय. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. We have one question, madam, from the audience only. Yesterday, they have given me that if pregnant woman is corona positive Yes. and getting treatment for it, Yes. what would be the ill effects of medication in fetus? I don't think कि any of the medicine given in corona positive patient is going to affect the baby. है ना. एक वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हम सब ने लिया है, अगर आप प्रेग्नेंट है तो भी ले सकते हैं. और एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन सी, डी, आई थिंक दिस इज द ट्रीटमेंट. ये सब बच्चे पे कोई असर नहीं करता है. जी मैम. अगर आप वेंटिलेटर पर भी रहे हैं और आप रिकवर कर गए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. और आई थिंक there's no problem. इनफैक्ट ये एक जरूर मैं शेयर करना चाहूंगी कि कोई अगर एंड ऑफ प्रेगनेंसी में है और वो वेंटिलेटरी सपोर्ट पर है और उसकी जान भी खतरे में है, तो ऐसे में डिलीवरी कराना उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा. एंड इट शुड बी डन इमीडिएटली बाय सिजेरियन सेक्शन. जैसे ही बच्चा बाहर आएगा तो जो डायफ्राम है, प्रेगनेंसी में बेबी ऊपर आता है, डायफ्राम गेट्स पुश्ड अप एंड द लंग कैपेसिटी गोज डाउन. तो ऐसे में अगर डिलीवर कराते हैं तो उसके लंग का एक्सपेंशन अच्छा हो जाएगा और डिलीवरी वुड बी हेल्पफुल. और कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ना कोविड ट्रांसमिट कर रहा है बच्चे में. आई एम सॉरी, देयर आर रिसेंट लिटरेचर जहाँ पर ये बताया गया है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है, बट अभी हमारे पास इसके बहुत डिटेल डाटा नहीं है. तो डर तो है, से डर तो है, बट मेडिकेशन का नहीं, इन्फेक्शन का. Infection. So, madam, is there any evidence, research-based evidence, which tells us that this virus crosses placental barrier? Yeah. तो फिर ये रिसर्च भी आएगी, तो फिर ऐसी दवाइयां भी आएगी जिसमें हम वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोक सके. जैसे HIV के केसेस में हुआ कि हम एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स पहले से देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली टू डिक्रीज द मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन. अभी कोविड तो इतने वी डोंट हैव डाटा ऑन सो मेनी कोविड प्रेग्नेंट वुमेन जहाँ बच्चे को. चाइना में ऐसी स्टडी हुई है इन द वुहान हॉस्पिटल ओनली. वहां पर उन्होंने बच्चे के एंटीबॉडीज चेक किए थे आफ्टर बर्थ, बट उनका ऐसा मानना है कि द डाटा इज टू स्मॉल टू प्रिडिक्ट एनीथिंग. तो and madam, one more question we have, that is coronavirus is responsible to cause any congenital anomaly? No. Is there any evidence? No. अभी तक का जितना डाटा मैंने अपनी एक स्लाइड में बात करी थी कि इट इज नॉट टेरेटोजेनिक. neither the drugs given are teratogenic, neither the virus is teratogenic.
Madam, one question is coming from Dr. Ankit Ladda. He's asking, it is compulsory to have tetanus vaccine during pregnancy? If it is yes, why? So, Say, Dr. Ankit, I've been trained in UK, और मैं आपको बता दूं इंडिया के बाहर टेटनस का वैक्सीन नहीं दिया जाता प्रेग्नेंट महिलाओं को, ठीक है। उसकी वजह है कि टेटनस का जो इन्फेक्शन होता है वो तभी होता है जब हम अनहाइजीनिक प्लेस पर मदर को डिलीवर करते हैं। बट इंडिया का नेशनल प्रोटोकॉल रहा है और आज भी है कि हमें हर प्रेग्नेंट महिलाओं को 2 बार टेटनस का इम्यूनाइजेशन देना है। जब मैं नई आई थी तो मैं नहीं लगाती थी, तो मेरे कई सारे पेशेंट मुझसे नाराज हो गए कि मैडम तो टेटनस लगवाती नहीं, और वो जाके इधर उधर लगवाते थे। तो जिस देश में रहते हैं वहाँ के नियम कायदे फॉलो करने हैं, और अगर आप लगाते हैं तो जो अब लेटेस्ट प्रोटोकॉल है, इवन नाउ इंडियन गवर्नमेंट इज फॉलोइंग इट, क्योंकि टेटनस का वैक्सीन बहुत सस्ता आता है, ANMs लगाती हैं और 2 बार लगाना ही है। तो जो गांव की महिलाएं हैं जो लो रिसोर्स हैं, उन्हें 2 वैक्सीन तीसरे और चौथे महीने में 1 मंथ के अंतराल पे लगाना है। जो व्हाट वी प्रैक्टिस फॉर आवर पेशेंट इज 1 टेटनस वैक्सीन एट द स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी, और दूसरा जो वैक्सीन आता है वो Tdap का आता है। इसमें टेटनस, पर्ट्यूसिस और वूपिंग कॉफ का वैक्सीन होता है जो कि 8 मंथ में लगता है। ये WHO गाइडलाइंस है दीज डेज। तो उसमें टेटनस का कॉम्बो वैक्सीन होता है। ऑल्दो ये वैक्सीन महंगा आता है इसलिए हम सबको नहीं लगाते, बट दिस इज नाउ द लेटेस्ट गाइडलाइन। 1 tetanus plain at 4th month and another tetanus Tdap at 8th month. Thank you, ma'am. Thank you so much. I think Ankit Ladda said you have got your answer. And madam, our treasurer from Gwalior, Vikrant Group of Institutions, Mrs. Gunjan Singh Rathore is with us. Madam is also eager to ask some questions. Gunjan ma'am, you can ask question, please. Ma'am, actually I had questions, but it all got cleared in the presentation only. Wonderful session, ma'am. Thank you. A very good morning to all of you, and I hope everyone is in good health. Ma'am, it is a privilege for us to have you here on VGI platform. Ma'am, the session was very knowledgeable, and you explained everything with such ease. Everything was covered very beautifully, ma'am. Yeah. I'm sure everyone present here absorbed the extensive knowledge you shared with us. And from the entire VGI, ma'am, entire Vikrant group, I would sincerely thank you for taking out the time and educating us on the topic, ma'am. And in the end, thank you, Keshkali, ma'am, for an excellent webinar, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Madam, really, by listen your talk, we all are highly enlightened by your knowledge, which is very valuable to us. And I want to request you that let the things normal, then definitely I'll call you in my campus, and directly you will handle the questions of audience, and periodically we'll meet, madam. So we don't want to lose you, because this platform is virtual. Here knowledge which you have shared is very valuable, but even after that many new things we have in our sessions to discuss, which we'll discuss later on, and hopefully within few months things will be normal and we'll be able to see you in VGI campus. So on behalf of whole institution and my management authorities, I extend my heartiest thanks to you, madam, and my higher management for giving me this permission and privilege to organize this webinar and have this wonderful session for my students and my faculty members. So thank you so much, ma'am, once again. Thank you, Garima, madam. Ma'am, I have one thing to say. Ma'am, as Keshkali ma'am, as Manila ma'am said, we should also conduct drills. Yes. For, yeah, ma'am, we can do that in guidance of ma'am also. Yes. Right? Yeah. Thank you. Sure. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you.